ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಎಂಐಡಿಸಿ ಮಹಾಪೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ರಮಾಡಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 30ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲಿಗರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದು 3 ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಆಹಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹೋಟೆಲಿಗರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಡೆಯಿತು. ರಪಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೇಶ್ ಪರಿವಾರ, ಆಶಿಬಾಬಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ಕೊಯ್ಲಿ, ಸೀಮಾ ಎಂ ಕೊಯ್ಲಿ ದಂಪತಿ, ನೆರೂಲ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನಂದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ, ಐರೋಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಚಂದ್ರಾವತಿ ದೇವಾಡಿಗ ದಂಪತಿ, ಸಿಬಿಡಿ ಬೇಲಾಪುರ್ನ ಅಶ್ವಿತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ, ಐರೋಲಿ ಮಮತಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 99% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸೈಶ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಬೋಯಿರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ಸಹ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಮಾತ್ರೆ, ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ, ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖಾಂದೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಡವ ದೀನ ದಲಿತರ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹಸನ್ಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡು ರವಿಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವರದಿಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಸಭಿಕರಾಗಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೋಪಾಲ್ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಶೋರ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗೈದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಎಂಐಡಿಸಿ ಮಹಾಪೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ರಮಾಡಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಮಾಡಾ ಮಿಲೇನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲೊಂದು. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು
ಗೆಲುವಾಗಿಪ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿಪ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಪ ವಾಗಿಪ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿಪ ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ತುದೆ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ತುದೆ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು ದಯೆಯಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗತಿ ನೀನೆ ಆದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿಪ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿಪ ಗುರುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಹೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿಪ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿಪ। हमारा 30वां जो महासभा जनरल बॉडी आज हो रहे हैं, इसके आया हुआ सभी हमारा मेंबर को पहला स्वागत करता हूँ। ऐसा ही हमारा जो आर का फेडरेशन का आर एसोसिएशन का जो आदर्श प्रेसिडेंट साहब अपनों के एडवाइस करने के लिए यहाँ आए हुए, उनको ही उनका और टीम के लिए हम विश्व लेना वो भी आ रहे हैं, उनको सब अभिनंदन करता हूँ अपने तरफ से और स्वागत करता हूँ। ऐसा ही हमारा सीनियर प्रेसिडेंट्स है किशोर अण्णा और गोपाल अण्णा और अपना एडवाइजर है सदाशिव अण्णा और सभी जो अपना सीनियर होटलियर है, सभी को हम नवी मुंबई होटल ओनर्स एसोसिएशन कमेटी की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा ही आज का जो कार्यक्रम के लिए मैं सभी से अनुमोदन चाहता हूँ। ये जो हमारा नवी मुंबई होटल एसोसिएशन लास्ट 30 साल से बहुत अच्छा से डेवलप दिन से अच्छा से डेवलपमेंट हो गया और लास्ट हम लोग का जो कार्यकाल है लास्ट तीन साल से हमारे कार्यकाल का टाइम चालू हो गया था। ये 3 साल में बहुत कुछ हम लोग को तकलीफ आ गया एसोसिएशन को, लेकिन हम लोग का सहयोगी बाहर का जो एसोसिएशन सभी का एसोसिएशन का था, अपना महाराष्ट्र का या बाहर का सभी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग को यश मिला और आज का दिन हम लोग सभी से गुजर के थोड़ा कुछ आराम से बैठा है। सभी लोग को अभी सहकार्य किया, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे एसोसिएशन की तरफ से और ऐसा अभी आगे के लिए हम सबसे अभिनंदन करता हूँ तो आगे का कार्यक्रम आगे बढ़े। नवी मुंबई होटल ओनर एसोसिएशन की 29th एजीएम सभा का आयोजन दिनांक 11 जनवरी 2017 के दिन शाम 6 बजे होटल रामाडा महापे नवी मुंबई में किया गया था। सदस्यों के कम उपस्थिति के कारण सभा आधा घंटा स्थगित करने के बाद शाम ठीक 6:30 बजे सभा का कार्य शुरू हो गया। सभा के सूत्र संचालक श्री दिनेश जोशी जी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित किया। सभा की शुरुआत में अध्यक्ष श्री दयानंद एस शेट्टी जी और सभी पदाधिकारी तथा मान्यवर अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। श्री रविशंकर आचार्य जी ने अपने मधुर स्वरों में प्रार्थना गीत गाया। सभी पदाधिकारी मंच पर स्थानापन्न होने के बाद अध्यक्ष श्री दयानंद एस शेट्टी जी ने सभी अतिथि मान्यवर स्पॉन्सर्स और सदस्यों को स्वागत पर भाषण किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री महेश शेट्टी जी ने दिनांक 18 नवंबर 2015 के दिन संपन्न हुए 28th एजीएम का वित्तीय वृत्तांत सभा में पढ़कर सुनाया। सभी सदस्यों ने उसे अनुमति दी। सूचक श्री सदाशिव शेट्टी जी
अनुमोदन। समाप्त हुए 1 साल का ऑडिट किया हुआ एसोसिएशन के अकाउंट्स सभा में पढ़कर सुनाए। सभी सदस्यों ने उसे अनुमति दी और पास किया। एसोसिएशन के ऑडिटर के नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सभा में विश्वनाथ शेट्टी जी को ऑडिटर नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। सूचक मनमथ शेट्टी जी, अनुमोदन गोपाल शेट्टी जी। सीनियर हॉटेलियर्स का सत्कार। जिन्होंने अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करके जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उन मान्यवर व्यक्तियों का सत्कार। विश्वनाथ शेट्टी है, सीए, हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं इतना साल से। हम लोग को मानना है कि उसको ही कंटिन्यू करें। जरा आप लोग कोई भी उसको सुझाव रहेगा तो दे सकता है, नहीं तो हम लोग एसोसिएशन का जो ऑफिस बेयर्स का ये है कि उसको कंटिन्यू करेंगे। कमेटी का अप्रूवल लेगा तो आपको ऑटोमेटिकली फिर वो बैठ के वो लोग बनेंगे। अगला एजीएम में आप उसको पुट अप करके पास करके ले वो ऐसा करेगा, ऐसे कीजिए। अच्छा, कमेटी का अप्रूवल हम लोग मंजूर है ना सब लोग? कुलकर्णी जी लिख लें। चलो, अभी आप लोगों का कमेटी आउटगोइंग कमेटी है, अभी इनकमिंग कमेटी है, उसका बराबर समन्वय से चलना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कमेटी बनाने के लिए अभी नहीं इसके लिए बोल रहे हैं। ये कमेटी बढ़ा रहे हैं हम लोग, वो स्वयं से चलने के लिए कानून से चलना चाहिए। उसमें कोई भी आड़ा टेढ़ा कोई भी निकलेगा, बाद में सब बाकी वालों सबको तकलीफ नहीं आना चाहिए किसको भी। ये एक्चुअली आउटगोइंग कमेटी इनकमिंग कमेटी का इसमें कोई मतलब नहीं है। हम इसके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए एक एडवोकेट के अंडर में एक सेपरेट कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी फुल्ली अथॉराइज करेगा। अपना कानून में नहीं बढ़ता है। हम लोग का ऐसे सोचते हैं कि मार्च तक हम लोग रिन्यूअल फीस ले लेगा, मार्च के बाद में ऑटोमेटिक मेंबरशिप आप लोग का डिलीट हो जाएगा। बाद में वापस मेंबर बनाने के लिए आप लोग फिर पहला जो एडमिट फीस है ना वो भी भरना पड़ेगा। इसके लिए वो जो हम लोग पहला सोचा कि जो लेट हो गया मेंबरशिप रिन्यूअल को उन लोग को इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ट्रेड यूनियन में वो नहीं होता है और अपने एसोसिएशन में भी वो नहीं बैठता है, किधर भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। इसके लिए हम लोग जनवरी का रिन्यूअल है, 31 दिसंबर का रिन्यूअल होता है एसोसिएशन का, उसको मार्च तक एक्सटेंशन करेगा। मार्च के बाद में जिसका भी ये मेंबरशिप का फीस नहीं है, जो मैंने बोला इसके बारे में, मेंबर भी यही करेगा। हाँ मेंबर हम भी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी करेगा। वो अगर घूमता है सबको नया वो अप्रोच करेंगे वहां से। कहीं भी हमने ये भी उनको बोला है कि कहीं भी कुछ रुकावट आता है वहां से डायरेक्ट मुझे या सेक्रेटरी साहब को नहीं तो प्रेसिडेंट साहब को वहां से फोन करेगा। मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट अपने एसोसिएशन की तरफ से रहेगा। यस बैच उनको पूरा आईडी कार्ड पूरा ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. कि दयानंद शेट्टी साहब को मैं पहचानने के लिए 25-30 साल से पहचानता हूं, लेकिन उनके साथ काम करने का मौका मैं ये 3 साल से, जब से मैं जनरल सेक्रेटरी बना, वो साहब प्रेसिडेंट बना, तब से मैं काम कर रहा हूं साहब। लेकिन यकीन करो दोस्त कि जिधर भी मीटिंग हो, जिधर भी अपॉइंटमेंट हो, 15-20 मिनट वो पहला पहुंचते हैं, हम लोग बाद में आराम से पहुंचते हैं। जो हकीकत सच बात बोलता हूं। माना कि वो आते हैं मुलुंड से और हम लोग रहते हैं बाजू में एक खारगर से। तो जो ऐसा शख्स जो इतना वक्त दे सकता है, हर रात को बोलो किधर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स है, दयानंद किधर है, ये होटल के बाहर खड़ा हूं, ये होटल के अंदर खड़ा हूं, ये पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। तो जो शख्स इतना वक्त दे सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, क्रिकेट टीम का कैप्टन सलामत, तो प्लेयर लोग, तो कैप्टन अगर सही रहेगा तो वो सबको साथ में लेके चलता है। वो हिसाब हो गया हमारा इधर।
तो इसके लिए मेरा एक सबसे विनती है, डिसीजन आप लोगों को लेना है। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर दयानंद साहब ही कंटिन्यू, उल्टा मैं तो विनती कर रहा हूं, सब आप ही कंटिन्यू करो। कहते हैं कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, दयानंद सलामत तो हम लोग सब है पीछे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उनको ही कंटिन्यू करने दो। मैंने आधा ही बोला है। तो उनको ही कंटिन्यू करो, बाकी कमेटी वही चाहिए नहीं चाहिए वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्या करना है वो आप डिसीजन लो। और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात, बिलीव मी और नॉट सदोशना, सबसे बड़ी बात, हमारा पिलर जो है, हमारे को सपोर्टिव है रवि अन्ना। हम लोग खाली पोल की तरह खड़े हैं, धक्का मारने बोल रहे, अरे मनीष अन्ना जल्दी आना है, अरे मोहन अन्ना जल्दी आना है, ये इसके लिए ये रेडी करना है, उसके लिए रेडी करना है। वरना सच बोलता हूं, धक्का मारने वाला अगर वो रवि अन्ना नहीं होता तो हम लोग तो एकदम, बिलीव मी, सच बात सर, एप्रिशिएट कर रहा हूं। ये भी, ये जब से चालू है हर रोज फोन, अरे मैं बोलता साहब जरा शांति, नहीं ये क्या हो गया, बुके का क्या हो गया, ये क्या हो गया, उनका क्या हुआ, इन्विटेशन कार्ड भेजा आदर्श को, वो एमडीसीटी को सबको भेजा, अरे जैसे घर का काम है, हम तो बोलते हैं एसोसिएशन का है ना, आराम से कर। तो इसलिए आई रियली अप्रिशिएट रवि अन्ना, जो उन्होंने इतना मेहनत करके, बिलीव मी, सीनियरिटी में मैंने, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू डियर, थैंक यू। आप लोग सब आगे जाए, आगे आके सब बता दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग जितना कोशिश रहता है उतना कोशिश में आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग मदद करेगा। हमारा कीमती टाइम इसके लिए देखता है हम लोग, इसके बाद में आप लोग कुछ भी सुना रहेगा तो हमारा टाइम उधर निकल जाता है, क्या बोला कैसा बोला, वैसा नहीं रहना चाहिए। सभी लोग साथ में आ जाओ, या सीनियर्स हो, पुराना होटल वालों, जो भी है अपना जो है सीनियर होटेलियर्स है, और दूसरा जो हमारा पहला एक्स-प्रेसिडेंट है, सभी से निवेदन है कि सभी लोग आगे आ जाओ, हमारे जो भी एसोसिएशन हाथ में हाथ बढ़ाओ, जो काम चलने के लिए आप लोग हमको मदद करो, ये अपना निवेदन है सबसे। थैंक यू सर, थैंक यू। वो प्रपोजल जनरल बॉडी का सामने डालिए। अभी क्या है, हम लोग ने जो 1000 रुपया अपना स्टार्टिंग किधर हुआ, ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने 5.5 लाख का डिमांड डाला। अभी डिमांड डाला तो हमने अपना मेंबर लोग को बोला हमें शायद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी ये जो 500 मीटर में आदर्श जानता है, ओपिनियन लेने के लिए इन्होंने करीब 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। एसोसिएशन काम करते हैं तो ऐसा ही आसानी से काम नहीं होता है, हर चीज के लिए पैसा लगता है तो अपना मेंबर लोग सपोर्ट करें तो जो आगे जाते हैं वो आगे जाके काम कर सकते हैं। अभी हम लोग 1 साल में जो मजूरी किया, ये ऐसा ही नहीं हुआ, उसके लिए बहुत कुछ हम लोग को बहुत ही काम करना है। होटल इंडस्ट्री माने आज अपना सब जगह एक उनका एक वैल्यू अलग है, होटल वाला माने एकदम ये वो लेवल तक हम लोग आगे ले। उसके लिए हमारा जो इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस है उसे हमें बचाना है और हमारा इज्जत मार्केट में बचाना है। इसके लिए आप लोग का सबका साथ चाहिए। अभी जो दयानंद बोलते हैं ऑफिस चाहिए, ऑफिस के लिए क्या करने का, दयानंद आगे अभी आप बात करो। परमिशन ले रहे हैं कैसे करने का, आप लोग बोलो, ऑफिस बनाने का नहीं, पब्लिक से कोई उनके बोल दो क्या है करने का, चलो आप लोगों पर जोड़ दिया। अभी फूड लाइसेंस रिन्यूअल के बारे में ऑलरेडी बताया, हमारे पास 18 हेल्थ लाइसेंस हो गए, ट्रेड लाइसेंस है, वो बॉम्बे में 392 है, इधर 376 है, 92 है, 94 है, हमारा 376 है। वो दोनों लाइसेंस के लिए आहार भी गया हुआ है, हम लोग भी गए हैं, कैंसलेशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारा ऊपर जो लीगल एक्टिविटी जो भी सपोर्ट है हम लोग आके करेगा। अगर कुछ भी तकलीफ हुई तो आप लिख के दे, हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है हम लोग। जो इलीगल के लिए बोले तो किसका शेड है, शेड है तो परमिशन था, पहला हम लोग का सब शेड लेने का परमिशन था, मंडी साहब आया उसको कैंसिल किया। अभी जो मानसून शेड का जो परमिशन है उसको पहले कैंसिल किया था, उसको हम लोग ऑलरेडी प्रपोजल आगे बढ़ा दिया, अभी उसका भी शायद परमिशन मिलेगा। हमारा कमीशन अभी भी अच्छा है, थोड़ा करके देगा, उसको कोई ये नहीं। लेकिन वो 2004 में जो लाइसेंस उसको 2002 में पास किया था मानसून शेड का, जब उसके बाद में उसको कैंसिल नहीं किया अभी तक। वो जो हम लोग उसका भी दिया निकाला 2002 पे ना, 2002 में जनरल बॉडी ने अप्रूव करके लिया था मानसून शेड का। हाँ, उसके बाद में उसको 2004 में जनरल बॉडी ने पास किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिश्नर भी वो ओवरराइड नहीं कर सकता है।
जनरल बॉडी में पास किया था, महासभा ने एक्सेप्ट किया था, उसके लिए उसको मंत्री कमिश्नर ये नहीं कर सकते। स्टे लिया हूं मैंने 2 साल से अभी टेम्परेचर की नहीं वही सब हम लोग जा रहे हैं, वही चालू है हमारा। क्योंकि वो बोलते तुम सेपरेट करके ले लो बिल्डिंग से, अभी बिल्डिंग से सेपरेट करके लेना, वो जनरल बॉडी वो सब। ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. आदर्श शेट्टी साहब, जिनको हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, हमें मार्गदर्शित किया। ऐसे ही भविष्य में आप नवंबर होटल ओनर्स एसोसिएशन को सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद है। दयानंदना जी, न्यू मुंबई होटल एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं मंच में, उनको, न्यू मुंबई के वरिष्ठ होटेलियर्स उनको भी, और सभी यहाँ पर मौजूद नवी मुंबई होटल एसोसिएशन के भाइयों बहनों, लड़के लड़कियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज आपका 30वां मैनेजिंग कमेटी का ऑफिस आप लोग का
आई थिंक AGM है, ये 30th AGM है, उसके लिए आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे आहार की टीम से, आहार मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, आहार के ऑफिस बेरर की टीम से और मैं आहार के अध्यक्ष की तरफ से आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि 2 चीज़ों के ऊपर जो दयानंदन जी ने कहा और बाकी के जितने आपके वरिष्ठों ने कहा, बहुत भावुक होके सदाशिवानंद ने भी कहा कि एसोसिएशन का साथ दो, एसोसिएशन के साथ रहो। दयानंदन ने भी अपील किया कि दयानंदन जी को किसी ने स्लोगन दिया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में है। पीछे रहने से कुछ नहीं होता है, साथ में रहो, बाजू में रहो। उनका बाजू में रहना बहुत ज़रूरी है। और 2 चीज़ों में आप लोग ने देखा कि बड़ा एक होटेलियर कितना भी बड़ा हो, साथ में रहो तो काम हो सकता है। हम दिल्ली तक जाकर 18 को 5 करके लेकर आए। संगठन का ये मजबूती है, संगठन का ये साथ रहने का जरूरी है। दयानंदन जी ने भी हमें बहुत साथ दिया, हाईवे का मैटर में हमने भी उनका साथ दिया और हमारा एक बहुत अच्छा संबंध बना है। 3 साल से जब से मेरा कार्यकाल हुआ और आखिरी साल में हमें सबसे पहला हाईवे का इश्यू आया, उसके बाद हम थोड़े थोड़े हाईवे से निकले तो फिर GST आया। GST के बीच में अभी जैसे यहाँ पे मुद्दा हो रही थी, अब कुछ लोगों ने FSSAI का बात किया कि ड्यूल लाइसेंस है। FSSAI का ड्यूल लाइसेंस है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम मुंबई में भी हम इसके बारे में हमने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन किया है हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ, लेकिन ये एक टेक्निकल इशू है। मांगेगा आपकी तो बाजू से दूसरे से लेके आएगा, लेकिन उसको दे देगा वो टाइम के लिए। इस तरीके से ये एटीट्यूड लेके आप नहीं चला सकते हो संगठन में। दयानंदन क्या कोई भी नहीं चला सकता है। अगर आपको चलाना है, आज आत्मसम्मान के साथ, आप गलत कुछ नहीं कर रहे हो। कोई होटेलियर गलत नहीं करता है, वो लाइसेंस लेके लाइसेंस के दायरे में रह के काम करता है। ये क्या आपका अंदर का इनसिक्योरिटी और डिपार्टमेंट ने जो इतना साल से आप लोग को जो इनसिक्योर फीलिंग दिया है ना, वो इनसिक्योर फीलिंग से आप लोग दबते हो। कमिश्नर से मिलने का टाइम पे भी क्यों दयानंदन को मजबूत बनाओ, वो भी एकदम बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव लेके मिलेंगे। आज आर का जब भी डेलीगेशन कोई भी डिपार्टमेंट से मिलने जाता है, डिपार्टमेंट अपना होमवर्क करके बैठता है। GST नेशनल इश्यू था, गोपाल शेट्टी जी ने हमको दिल्ली तक लेके गए। हमको FM के साथ 1-to-1 हम मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मिलने का हमको अवसर मिला। 2 क्वेश्चन पूछा उन्होंने हमारे से, आम आदमी को इसमें तकलीफ है, और दूसरा क्वेश्चन था कितना है। तब मैंने उनको माटुंगा में होटल में जो हुआ, जो एपिसोड हुआ, वो बताया कि एक लेडी 65 ईयर ओल्ड लेडी ने पार्सल कैशियर का मुंह पे फेंका, बोला पाएंगे। और ये गलत फहमी मत रहना कि FM ने ये किया। FM का उतना बड़ा दिल है ही नहीं हमारा। ये सबसे प्रधानमंत्री का काम है, क्योंकि उनको कॉमन आदमी का पल्स मालूम है, और ये पल्स हमने उनका सामने रखा। नहीं तो GST में हमने तो राइस प्लेट मांगा था, हमको तो बुफे दिया इन्होंने। हम तो 12% के ले जा रहे थे। हमने तो राइस प्लेट मांगा था, हमको तो उन्हें पूरा बुफे दे दिया। लेकिन उसके साथ आपको एक जिम्मेदारी भी दिया है, 5% पे आप कस्टमर से लीजिए, उसको अपने रेट में कंपोजिट करने मत जाइए। राजपूत रॉय, राजपूत रॉय, और कोई भी प्रेस वाला आया होगा तो मंच पर आइए। नमन टीवी, नमन टीवी, नमन टीवी।
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ सकल न्यूज पेपर कोई भी मीडिया वाला अगर आया हुआ तो मंच पर आइए। अभी होटल इंडस्ट्री में जोड़ा हुआ दूसरा इंडस्ट्री है अपने का आज स्पॉन्सर रूप में आया हुआ है इधर राजेंद्र। 2 मिनट जरा आहार के एजीएम के बारे में आपको कहना। 21 को हम लोगों का आहार का एजीएम है। तो मॉर्निंग में हम लोगों का सेमिनार्स वगैरह भी है और इवनिंग में कुछ 80 स्टॉल्स हम लोगों का होते हैं वहाँ पे। तो मैं सभी नवी मुंबई के सभी ऑफिस बेरर्स और सभी को इनवाइट करता हूँ आदर्श अन्ना की तरफ से। और लोधा ग्रुप ऑफ बिल्डर्स लोधा आइसलिंग रवि किरण। नवी मुंबई होटल एसोसिएशन को विधि सेल्स कॉरपोरेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हम लोग होटल केटरिंग सप्लाई ये बिजनेस में करीबन 18-20 साल से अपने होटल में अपना कंटेनर्स वगैरह है, कैरी बैग है, फॉइल वगैरह है, ये सब हम सप्लाई करते हैं। हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग का मटेरियल है हमारे पास। बड़े बड़े जैसे नवी मुंबई में होटल्स है, वो कुछ लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बाकी अभी हम लोग ने आपको जोड़ने के लिए बाहर स्टॉल भी लगाया है और अपना वहाँ से जाते टाइम कार्ड कलेक्ट करके जाए। थैंक यू। My name is Rajesh JMC. I'm from Jia Manufacturing. We are into ice productions. We supply ice to hotel industries. We have launched ice packets last 2 years back in Mumbai. We are into pan India level. We have launched ice in Pune and Jaipur also, and we hope we can go with your business. And thank you so much for your support. हम लोगों की ये पहली बियर है जो व्हीट बेस्ड है और इंडिया में स्ट्रॉन्ग के उसमें अभी हम लोगों ने न्यू वेरिएंट लॉन्च किया है स्ट्रॉन्ग, विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ गया है जो व्हीट बेस्ड है। ये बीरा एज अ बियर बहुत ही अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, ये हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इनके। हर एक वेरिएंट के बारे में अलग से हम लोग आपको, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों को एक एक वेरिएंट के बारे में अच्छे से बताया जाएगा और हम लोग का ऑफर हर एक चीज़ डिटेल में आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप मिलिए हमारी टीम से, हमारी टीम आपको खुद अप्रोच करेगी, आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करिए। एंड थैंक यू सो मच, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इस मंच पे आके इस एसोसिएशन अटेंड करके। ಗಂಗಾಧರ ರಿಪೀಟ್ ಉಂಟು 20% ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಲು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಉಂಟು ಏನು ಅವೇ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಪುರಾಣ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಉನ್ಮಲ್ದಿನಿ ಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಜನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಈಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.
ऑडियंस से एक सुझाव आया अभी, ये है कि हमारा आज का जो जनरल बॉडी मीटिंग में 20 से 25% होटेलियर्स आए और जो 75% जो होटेलियर्स है आज का हमारे डिसीजन के बारे में और जो हमने डिस्कस किया उस बारे में उनको जानकारी देना जरूरी है, ऐसा ऑडियंस से सुझाव है। इसके लिए हमारी कमेटी मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे, या इसको कोई न्यूज़पेपर में देना चाहिए या कोई हैंडबिल प्रिंट करके हर होटल में देना चाहिए, उस बारे में हम डिसीजन लेंगे। और मैं मेरे व्यवसाय के मित्रों को एक बार और विनती करूंगा, जैसा आदर्श ने बताया, आप लोग सब 5% टैक्स कलेक्ट करके ईमानदारी से गवर्नमेंट में डिपॉजिट कीजिए। और उसके अलावा हमारा जो होटेलियर की आदत है अपना पैर को उधर पसरना इधर पसरना, और इसका आगे ये नहीं चलेगा। आपको जहां तक हो सकता है कायदे की दायरे में रहते हुए आपको किस तरह व्यवसाय करना है, आज अपना होटल वाला के एक स्वाभिमान से धंधा करने के लिए आगे आपको ये चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मेहरबानी करके कोई भी इलीगल काम करके आप आगे व्यवसाय करेंगे ये सोचना नहीं। एक न एक ऑफिसर आके आपको रोज आपका मुंडी नीचे करने का ये करेंगे, ये मैं विनती करके मेरे 2 शब्द को खत्म कर। 35 साल सर्विस करने के बाद, रिटायर होने के बाद न्यूक्लियस कंसल्टेंसी सर्विसेज करके कंसल्टेंसी सर्विस शुरू किया है। पर्टिकुलरली लेबर लॉज के बारे में जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट, शॉप एक्ट, बोनस एक्ट, कौन सी भी आपका अगर काम होगा तो ब्रोशर्स या मेरे कार्ड्स मैंने अभी बांटे हैं। पेरोल से लेके ESI, PF, इसके सारे बारे में आपको कंसल्टेशन हम दे सकते हैं। एक 4 लोगों की टीम है हमारी, तो आपको ऑलरेडी ब्रोशर्स हमने सर्कुलेट किए हैं। कुछ भी काम होगा तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी ऐसा ऊपर बर्थ नहीं लीजिए। जो भी हम एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं, हम एक संगठन के लिए कर रहे हैं। इसके लिए कोई कुछ भी बात होगा, अपना जो मीटिंग में कभी भी कुछ बात हुआ रहेगा उससे कोई भी अपर्थ नहीं बना दीजिए। प्लीज जरा सभी लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे एसोसिएशन आगे बढ़ाने, सब लोग सपोर्ट किया आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सहकार किए करके मेरा ये विनती है। आज आया हुआ सभी होटल मेंबर को और बाहर से अपना आदर्श इतना लंबा से आया है, अभी स्वयं से इतना 3 घंटा हमारे साथ में बैठे हैं, हमको जो जो एडवाइस दिए उनको मैं अपना नवी मुंबई होटल एसोसिएशन से आदर्श का टीम भी है, वो 3-4 लोग आए, आते हैं कभी भी आते हैं उन लोग टीम। हमारा जनरल बड़े कभी भी आते हैं, उनका तो कार्यकाल में तीनों टाइम नहीं देखा, तीनों टाइम सब टीम के साथ में आते हैं। उनको मैं हमारा नवी मुंबई एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही हमारे जो एडवाइजर है, हमारे जो सीनियर होटेलियर्स है और जो भी अपना एक्स प्रेसिडेंट्स है और पूरा मेंबर्स और हमारी जो कमेटी है 3 साल का बाद है, फिर भी आप जिम्मेदारी लिए ले वापस उन लोग, अभी उन लोग सभी को मैं नवी मुंबई होटल की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, ऐसे धन्यवाद देता हूँ। और जो आपके लिए बाहर अच्छा व्यवस्था किया है, रमणा वाला आपको अच्छा स्पेस दिया है, अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है, सब लोग अच्छा से खाना करके अपना जो इसके लिए जाना पड़ेगा। 29 ईयर्स बाद 30th हमारा एनुअल जनरल बॉडी चालू है। इसका एसोसिएशन का कामकाज 30 साल में बहुत कुछ बदला हुआ है। पहले से हम लोग एसोसिएशन को छोटे से ऊपर आया कि नवी मुंबई छोटे एक शहर था, जब भी हम लोग के शहर से एक एसोसिएशन बनाया कि हम लोग को पब्लिक को जो सहकार्य करने के लिए हम लोग एसोसिएशन रहता है। आज के दिन अभी 30 साल कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि एसोसिएशन से 30वां साल हम लोग जनरल बॉडी 30वां जनरल बॉडी इधर कर रहे हैं। इसके लिए हम अपना जो मेंबर्स है हम लोग सबको अभिनंदन करता हूँ। जो अभी का जो सहानुभूति है एसोसिएशन का मेंबर लोग हम लोग को दे रहे हैं, इसमें हम लोग काफ़ी खुश हैं। हर एक काम काज के लिए हर एक आदमी हमको मदद कर रहे हैं। और वैसा ही हमारा जो एसोसिएशन अभी 21 सदस्य का एसोसिएशन है,
और हमने 3 साल से मैं प्रेसिडेंट है, उससे पहले हमारा पहले चीफ प्रेसिडेंट आके गए, वो लोग भी कामकाज अच्छा करके गया, बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो एसोसिएशन है, जो अभी गया 3 साल से जो हम लोग एसोसिएशन में बहुत तकलीफ भी गुजार रहे हैं। ये तो इसमें जो लिकर बैन है और GST है और थोड़ा अपना डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे कानून से गवर्नमेंट का जो कानून कायदा है उनके हिसाब से हम लोग होटल चलाने के लिए अभी बहुत सुविधा गवर्नमेंट दे रहे हैं हम लोग। इसमें गवर्नमेंट को भी हम लोग को अभिनंदन करता हूँ मैं, जो गवर्नमेंट हम लोग को सहानुभूति दे रहे हैं। जो 18% के GST का टैक्स है अभी 5% में लाया है, इसके लिए हम वापस जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को अभिनंदन करता हूँ। ऐसा ही हमारा जो एसोसिएशन जो कार्यकारी समिति है, ये लोग का जो सहानुभूति से जो हमारा कार्यक्रम जो कार्यरूप से जो एसोसिएशन को मदद मिल रहा है, इसके लिए मैं कार्यकारी समिति का भी अभिनंदन करता हूँ। ये एसोसिएशन ऐसा ही थोड़ा अच्छा से चले और सब लोग का सहानुभूति से ऐसा ही हम लोग होटल एसोसिएशन छोड़ के जी बाहर का जो ऑफिसर्स या अपना जो सोशल वर्कर्स एंड डिफरेंट इलेक्टेड बॉडीज ये MLA MPC जो भी है अपना जो सब मदद किया उन लोग सबको मैं एसोसिएशन करके इस वक्त में ये अभिनंदन करता हूँ। ये जो एसोसिएशन है, जो हमारा जो कमेटी ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट होने के बाद इसके बाद में नया कमेटी में क्या करके अभी हम लोग कमेटी बना के ये मीटिंग में जो फाइनलाइज कर रहे हैं। और इसको जो हम लोग को जो 3-4 साल से हम लोग को जो सपोर्ट किया, जो रमाडा होटल का इधर का स्टाफ है, जो हम लोग को मीटिंग के लिए हम लोग को स्थलावकाश और सब करके दिया, उन लोग को भी हमारे एसोसिएशन के तरफ से सबका अभिनंदन करता हूँ। और आगे का करें, अभी 6 बजे से हम लोग को मीटिंग चालू करने के साथ थोड़ा डिले हो गया, 6:30 बजे को हम लोग मीटिंग चालू करें। इसमें जो बाकी का डिस्कशन है हमारी तरफ से हम लोग करें। ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.